Hmm, so sorry, guys. I think yes. Oh, thanks. Finally. Finally, I'm so sorry for the glitch. No problem. This is my first Because time doing live, I so literally I don't know, this has never happened before, but I'm so sorry. yeah, it's So alright. okay, It's all it's right. already let's start. Yeah. Let's start with the introductions. Mm. Okay, so sorry everybody who has joined and is waiting. So my name is Minha Laga. I'm a speech language therapist, and I'm also founder of Here and Say by Minha Laga. Or today we are going to talk about topic that is again काफी लोग इस बारे में बात तो करते हैं और आजकल बहुत ये टॉपिक इन भी है लेकिन द क्लियरिटी ऑफ दिस टॉपिक इज lacking. So today we are going to talk about understanding language delays, and to talk on this topic today we have with us Mrs. Amna Bukhari, uh, Recent. who is not only a good recently, who's only Amna is not only a good friend of mine, but she's a brilliant speech language therapist. Amna is working as a speech therapist for almost 5 years now. And thank you so much, Amna, for taking out your time, your precious time for us, and joining us today to talk on this topic. Amna, अगर आप अपना please थोड़ा बहुत introduction दें before we start today. Okay, so Minhal, thank you so much for inviting me on your platform. My pleasure. Minhal and I were in the same batch. We graduated in 2020, and I've been practicing as a speech and language therapist ever since. Firstly in Karachi, and then last year I moved to Islamabad, and now I'm practicing there. So this was my brief intro. इसके अलावा I've been working with children with language delay. जहाँ पे भी I've gained experience, I've seen kids with language delay. So I am very happy that Minhal chose this topic for me. Yes. Okay, so let's start with the topic for today, Amna. सबसे पहले तो I would like to ask you, जो सबसे पहले मेरा question है कि आप ये चीज़ clear करें कि what are the common signs that a child may experience who has language delay? Okay. So Minhal, जो extensively used criteria है for kids with language delay, वो usually हम देखते हैं कि यही होता है कि बच्चा जो है words use नहीं कर रहा, vocabulary limited है, या अभी तक जो है combine नहीं कर रहा words को into sentences. Hmm. But I would like to go back to as early as 9 to 12 months, because we know कि even babbling में भी जो है early indicators होते हैं of speech and language development. तो वी सी कि Hmm. बैबलिंग या तो लिमिटेड होती है, या फिर बैबलिंग में जो कॉन्सोनेंट्स की परसेंटेज है वो कम होती है एज कम्पेयर टू Hmm. टिपिकली जो हमारे माइलस्टोन्स हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के. इसके अलावा Right. बाय सॉरी Right. Go on. या सो इसके अलावा यस अगेन लिमिटेड वोकेबलरी होती है. यू सी के द चाइल्ड बाय 2 years of age आइडियली उनके पास 50 plus vocabulary होनी चाहिए, and that's when they start to join the words, right? So Right. kids with language delay, you will see कि बहुत कम उनकी vocabulary होगी, and they would most probably not be joining words into phrases. इसके अलावा ये तो सिर्फ एक्सप्रेसिव का हो गया. वी वुड ऑल्सो सी के दे वुड have difficulty following instructions, even simple instructions. इसके अलावा words की understanding, उनकी comprehension, वो भी they would face difficulty. One of the major things that I want to point out is कि phonological differences भी हमें नज़र आते हैं, जिसमें क्या है कि बच्चे जो हैं they tend to use simpler syllables. Multi-syllable words या complex words में थोड़े से they would face difficulty. So these are some of the Okay. common signs जो language delay में दिखते हैं. Again, receptive and expressive both.
ओके, सो दैट्स वेरी गुड ऑफ यू आमना कि आप ये यूजुअली ये मिथ्स होती हैं कि पेरेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आ रहा होता कि जब लैंग्वेज डिले है या लैंग्वेज का कोई मसला है तो वो सिर्फ एक्सप्रेसिवली बोलने का इशू एग्जैक्टली। नहीं होता है, उसमें समझने की भी बातें आ जाती हैं। या जबकि यूजुअली पेरेंट्स को ये लग रहा होता है कि सिर्फ लैंग्वेज डिले होगा तो सिर्फ बोलने में मसला आएगा, बट एक्चुअली यू आर सेइंग दैट इट स्टार्ट्स विद इन द ब्रेन एंड रिसेप्टिवली बच्चे को समझने में भी मसला होगा, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली। राइट। सो आमना, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपके बच्चे में लैंग्वेज डिले है और कोई और लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो उसको यूजुअली डिफरेंशिएट पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं? ओके, सो लैंग्वेज डिले और लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसका बहुत एक कॉमन कंफ्यूजन रहती है पेरेंट्स को। इवन अस एज प्रोफेशनल्स, हमें भी काफ़ी स्ट्रगल हम लोग कर रहे होते हैं आइडेंटिफाइंग इफ इट्स अ डिसऑर्डर और अ डिले। सो डिले, एज द नेम सजेस्ट, के लेट ऑनसेट होता है। सो द चाइल्ड वुड फॉलो द टिपिकल जो एज अप्रोप्रिएट या जो एज एक्सपेक्टेड माइलस्टोन्स हैं या जो पैटर्न है लैंग्वेज डेवलपमेंट का, लैंग्वेज डिले में बच्चा वो फॉलो कर रहा होता है। इट्स जस्ट दैट इट्स गोइंग टू बी a little slow, a little delayed, ठीक है, या लैग हो रहा होगा, बट दे वुड बी फॉलोइंग द सेम पैटर्न जो कि टिपिकली बच्चा डेवलप लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। Right. When it comes to language disorder, you would see कि atypical development होगी. It is not going to be the same as जो typical developmental milestones होते हैं language के। So एक easy example language delay की वो यही होगी कि बच्चा जो है the child would have words but वो probably join नहीं कर रहा होगा, right? They would know the name of their parents, they would know the name of their common day to day objects, ठीक है, but वो सिर्फ उनको join नहीं कर रहा होगा, या अभी तक vocabulary जो है वो इतनी expand नहीं उसकी हो रही होगी, right? But when it comes to language disorder की अच्छी example ये है कि a 2-year-old child or a 3-year-old child, they can identify shapes, they can name they can name the shapes, but क्या प्रॉब्लम आ रही होगी कि वो अभी तक अपने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होंगे या वो अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे। सो दैट्स व्हेन यू नो कि ओके दिस इज नॉट डिलेड, दैट माइट बी लैंग्वेज डिसऑर्डर। Okay, right, तो right. मेन So मेरा, डिफरेंस आई वुड yeah, से इज के पैटर्न का ज़्यादा डिफरेंस होता है कि लैंग्वेज डिले में पैटर्न बच्चे का टिपिकल ही होता है, जस्ट कि इट इज लैगिंग बिहाइंड, बट लैंग्वेज डिसऑर्डर में एटिपिकल आपको थोड़ी सी पैटर्न दिखता है। right, right, I understand. But so मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो इसी क्वेश्चन से थोड़ा बहुत रिलेटेड है कि फॉर मतलब अगर पेरेंट्स समझ रहे हैं कि भाई अब कोई ना कोई तो मसला है, लैंग्वेज डिले है या कोई भी उनके समझ नहीं आ रही है, तो व्हाट एज शुड द पेरेंट्स बी कंसर्न कि भाई अब मेरा बच्चा इस एज पे आ गया है, फॉर एग्जांपल 2 साल का है, 3 साल, यूजुअली यू नो कि पेरेंट्स को समझते समझते ही टाइम लग जाता है, खास करके फर्स्ट बॉर्न में अगर ऐसा कोई मसला आ गया, तो किस एज के बाद पेरेंट्स को कंसर्न होना चाहिए और आपको एज अ थेरेपिस्ट या किसी भी प्रोफेशन को कंसर्न करना चाहिए? So, Minhal, I wouldn't specify an age, लेकिन I would want to say कि जब पेरेंट्स नोट कर रहे हैं कि बच्चा की माइलस्टोन्स मिस आउट कर रहा है, right? As soon as possible they need to come in and seek professional help. It's not कि obviously therapy start होगी, we know कि कितने पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको हम बोलते हैं कि वेट एंड सी वाली अप्रोच हम काफ़ी दफ़ा करते हैं, बट पेरेंट्स के लिए आई वुड से कि जितना जल्दी उनको लग रहा है कि the child is not following या they are missing out some of the milestones, they should come at least and get an assessment done. I would say कि by at least 12 months या 18 months के between, if they feel like the child is missing out on key language and communicative milestones, they need to come in and see a speech and language therapist. So 12 to 15 months आपने ये हमें एज ब्रैकेट दिया है, जबकि हमारे कल्चर में तो ये बहुत अर्ली माना जाता है यूजुअली। नाउ आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग अ बिट, बट खास करके अगर खानदान में किसी को ऐसा कोई इशू रहा है तो दादी नानियां सबको एग्जांपल देती हैं कि कोई मसला नहीं, हमारा बच्चा भी इतना लेट बोला था। हमने कितने लोगों को ऐसा देखा है कि वो
5 साल के बच्चे को लेके आ रहे हैं जस्ट बाय सेइंग कि नो, इनकी दादी ने कहा था कि अब्बू भी देर से बोलना शुरू हुए थे। Exactly. हाँ, तो Exactly. That's वो true. हमें पता है कि हम लोग फिर कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं स्टेटमेंट से। Yes, yes, but this is a very important thing that you notified right now. Amna, what do you think are the most common causes of language delays in children nowadays? अच्छा, मिनहल, लैंग्वेज डिले, इफ अगर हम सिर्फ लैंग्वेज डिले की बात कर रहे हैं, Hmm. इसमें वी नो कि कोई नॉन कॉज होता नहीं है, ठीक है, बट देयर आर रिस्क फैक्टर्स जो कि कंट्रीब्यूट टू लैंग्वेज डिले, ठीक है। मेजर आई वुड मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ कि चाइल्ड के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कि वी नो कि मेल्स में या बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होता है। देयर Okay. कैन बी लाइक अगर बच्चा प्री टर्म है या मेडिकल हिस्ट्री उसकी कोई है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, वी नो कि देयर माइट बी अ चांस कि ये बच्चा लैंग्वेज डिले हो सकता है इस बच्चे को। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री बहुत एक बड़ा, वी नो कि कितना ज़्यादा कोरिलेशन है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है लैंग्वेज डिले की तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे में भी वो चीज़ आए। पेरेंट्स की एजुकेशन, पेरेंट्स की अवेयरनेस एंड ऑल्सो पेरेंट्स का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे कॉन्ट्रीब्यूट टू अ चाइल्ड डेवलपिंग लैंग्वेज डिले। इसके अलावा वी नो Right. कि अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कितने ज़्यादा हैं, वी नो कि स्क्रीन टाइम कितना ज़्यादा है Hmm. बच्चों का, एंड लैंग्वेज इनरिचिंग इन्वायरमेंट नहीं रहा अब Hmm. बच्चों का जैसे पहले ज़माने में होता था। कम्युनिकेटिव Right. इन्वायरमेंट्स बहुत रिड्यूस हो गए हैं बच्चों के, मोस्टली अब वी नो Hmm. कि न्यूक्लियर फैमिली का सेटअप अब ज़्यादा हो रहा है, तो कितने Right. पेरेंट्स हमारे पास आते हैं जो जिनका ये कंसर्न होता है कि वो अकेले रह रहे हैं, उनके बच्चे को लैंग्वेज डिले होता है। Hmm. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इसके अलावा वी नो कि कुछ को मॉर्बिड कंडीशंस भी होती हैं जिसमें लैंग्वेज डिले हो सकता है, जैसे कि वी नो कंडीशन लाइक डाउन सिंड्रोम है उसमें लैंग्वेज डिले Hmm. है, हेयरिंग Right. इम्पेयरमेंट है उसमें भी वी सी लैंग्वेज डिले। सो वो Hmm. कोमॉर्बिड कंडीशंस में भी लैंग्वेज डिले होता है। इसके अलावा Hmm. इफ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज डिले तो इसमें ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें से Hmm. कोई भी एक रिस्क फैक्टर या 2-3 रिस्क फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन कैन रिजल्ट इन लैंग्वेज डिले। Okay. So मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था आमना कि कैन एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू लैंग्वेज डिले। स्पेसिफिकली आपने स्क्रीन टाइम का नाम लिया, तो अगेन स्क्रीन टाइम भी हमारे पास एक बड़ा कंसर्न है जो कि हम थेरेपिस्ट पूछते भी बहुत ज्यादा है अपने असेसमेंट्स में, और हमें बोला भी बहुत ज्यादा जाता है कि बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत देखता था, अब हमने अचानक कम कर दिया है। तो आई वुड रियली वांट कि आप इस पे बताएं कि क्या स्क्रीन टाइम लैंग्वेज डिले में फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रीब्यूट करता है, और दूसरा कि अचानक कम कर देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके कम करना चाहिए। पेरेंट्स आर रियली कंफ्यूज्ड, सो व्हाट शुड दे डू? Okay, so yes, the answer to your first question is that screen time does contribute in language delay या language acquisition को affect करता है। स्क्रीन टाइम का एग्जैक्ट अच्छा पेरेंट्स को ना ये नहीं समझ में आता कि स्क्रीन टाइम का क्या रिलेशन है लैंग्वेज से। सो आई वुड वांट टू टेल देम कि लैंग्वेज हमारे ब्रेन में डेवलप होती है, ठीक है। सो व्हेन वी और व्हेन द चाइल्ड इज एक्सपोज टू like 3 hours of screen या फिर 3 to 4 hours of screen time, उससे क्या होता है कि बच्चे की ब्रेन को जो है वो आदत हो जाती है उस इतनी ओवर स्टिमुलेशन की, ठीक है। बिकॉज व्हेन वी लुक एट द राइट, स्क्रीन मेनहल, वी नो कि कितना ओवर स्टिमुलेटिंग है, राइट। स्क्रीन में बिल्कुल। विजुअल्स कितने ज़्यादा चेंज हो रहे होते हम्म। हैं, ऑडिटरी कितना ज़्यादा स्टिमुलस चेंज हो रहा होता है, बैकग्राउंड अगर कैरेक्टर सेम है तो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि राइट। इतनी बच्चे की ब्रेन को आदत हो रही है इतनी फास्ट पेस और हम्म। इतनी ओवर स्टिमुलेटिंग चीज़ों को ग्रास्प करने की। प्रेस बट करने व्हेन इट की। कम्स टू नॉर्मल डे टू डे इंटरेक्शन, हमें पता है वो इतनी फास्ट पेस होती नहीं है, ठीक है। और उसमें हम हम्म। लोग इतना ज़्यादा जल्दी या। जल्दी बोल भी नहीं रहे होते, ना हम्म। ही वो इतना ज़्यादा बच्चे के ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो बच्चे की जो अटेंशन है वो सोशल इंटरेक्शन में बहुत कम आपको दिखेगी, सोशल क्यूज बच्चा मिस आउट करेगा, ठीक है। एंड जर्नली राइट। बच्चा अटेंटिव और इंटरेस्टेड नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज उसके ब्रेन को आदत हो गई सही। है एंड इट इज एडिक्टिंग, राइट। हम्म। तो वो भी एक अलग हम्म। फैक्टर है कि स्क्रीन इतनी हम्म। एडिक्टिंग है कि बच्चा जो है वो दे वुड रादर वॉच स्क्रीन फॉर द होल डे देन टॉक टू यू। तो वो एक राइट। जो नॉर्मल एक जो नेचुरल कम्युनिकेशन है उस चीज़ को वो रिप्लेस करती है।
ठीक है। तो इसीलिए हम स्क्रीन को बहुत ज़्यादा नेगेट करते हैं कि इट शुडंट बी इन अ चाइल्ड्स, एटलीस्ट एक डेवलपिंग ब्रेन के पास नहीं होनी चाहिए नहीं। स्क्रीन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था, आई फॉरगॉट। कि स्क्रीन टाइम थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देना चाहिए या एक साथ ही खत्म कर देना चाहिए पूरा? अच्छा, सो इसमें आई फील लाइक कि इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेशनल। ठीक है, बिकॉज आई थिंक कि सबका अपना होगा ओपिनियन, बट मेरा जो ज़्यादा सजेशन होता है पेरेंट्स को भी यही होता है कि ग्रेजुअली रिड्यूस करें टू प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम हैविंग एन आउटबर्स्ट। ठीक है, बिहेवियरल आउटबर्स्ट नहीं आता। सो जी। आई टेल द पेरेंट्स कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करें। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर एक बच्चा हैबिचुअली वॉच कर रहा है और आप उसको एकदम से रिड्यूस करेंगे तो यू कैन हाँ। सी कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है बच्चे के बिहेवियर में भी। हम्म। तो आहिस्ता आहिस्ता से ग्रेजुअली बच्चे की हैबिट्स को चेंज करें। ठीक है, एंड इट्स नॉट जस्ट कि आप स्क्रीन को हटा रहे हैं, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग एल्स। आई फील लाइक कि यू नीड टू कीप द चाइल्ड बिजी विद अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, उसकी हम लोग पूरी रूटीन की चेंजेस बताते हैं, सारी स्ट्रैटेजीज हम पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से जो है अपने इन्वायरमेंट को बेसिकली इनरिचिंग बनाना है या इंगेजिंग बनाना है फॉर द चाइल्ड। तो आई वुड राइट राइट। gradually, yeah. या आई एग्री विथ यू, आई डू द Yeah, सेम। ग्रेजुअली इज द आई थिंक बेस्ट, क्योंकि हमें अगेन ये चीज भी देखनी है कि वो पेरेंट्स या मदर्स भी आखिर इंसान ही हैं। exactly. ऑब्वियसली वी कांट जस्ट एक्सपेक्ट देम कि हम उनको काउंसल कर दें और हम बता दें कि आप छुड़वा दें और वो दूसरे दिन छुड़वा के आ जाएं। Yes, ऑब्वियसली दैट्स नॉट yes, पॉसिबल, सो वी that हैव is टू so कंसीडर। true, Minhal, because पेरेंट्स जो हैं वो यूजुअली एकदम से वो कर भी नहीं पाते हैं हैंडल। और कर भी नहीं पाते। पेरेंट्स के लिए भी यू आर राइट, टोटली राइट, कि हम हम्म। एक्चुअली में मदर के लिए स्पेशली या काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को वो कंट्रोल करना। हम्म। तो इसलिए हम पेरेंट्स को के लिए भी ज़्यादा ये बोलते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से, हम्म। बिकॉज वो भी एकदम से चेंजेस नहीं लेके आ सकते हैं एनवायरनमेंट में। यस। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज आमना, कि पेरेंट्स की बात हो रही है तो इस पे ही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि पेरेंट्स या केयर गिवर्स, उनका क्या रोल होता है लैंग्वेज, चाइल्ड की लैंग्वेज, इन इन चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट ओवरऑल? अगर हम देखें कि यही बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन टाइम यूजुअली मदर्स तभी दे रही होती हैं, बिजी होती हैं, किचन में होती हैं, काम नहीं कर पाती। बट आई वुड लाइक टू नो कि एज अ पेरेंट और एज अ केयर गिवर जो भी उनका ख्याल रखता है, जो भी उनके साथ घर में होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या व्हाट कैन दे डू टू एनहेंस देयर चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट? और डिले फॉर एग्जांपल अगर थेरेपी को अभी हम साइड पे रख देते हैं, व्हाट कैन दे डू एट होम टू enrich their child's language? ओके, सो मिनहल, सबसे पहले तो आई वुड से कि एक्सपोजिंग द चाइल्ड टू डिफरेंट कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट्स। ठीक है, ये हम काफ़ी सजेस्ट करते हैं कि इवन जैसे आपने कहा कि मदर बिजी होती हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, तो हम पेरेंट्स को मोस्टली यही सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट आप बच्चे को जो है किसी प्ले ग्रुप में या नर्सरी में एनरोल करवा दें, राइट, सो दैट एटलीस्ट अगर वो घर पे उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट वो एक जगह पे ऐसी जाए जहाँ पे उसको लैंग्वेज इनरिचिंग एनवायरनमेंट मिले या एटलीस्ट Right. कम्युनिकेटिव पार्टनर्स मिले। तो एक्सपोजिंग द चाइल्ड टू डिफरेंट कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट्स, टू डिफरेंट कम्युनिकेटिव पार्टनर्स, उससे बहुत Right. ज़्यादा हेल्प होती है। इसके अलावा मोस्टली आवर फोकस इज के क्वांटिटी ऑफ जो है वो इंटरेक्शन हो ज़्यादा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। Okay. वी नो कि इवन अगर पेरेंट 1 घंटा भी दे रहा है बट एटलीस्ट वो क्वालिटी पे फोकस कर रहा है कि क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन कैसी है। Are they stimulating the language? Are they stimulating the brain? या like brain के को engage करने की activities हो रही हैं या interaction हो रही है, तो वो that is better than quantity, right? Quantity. Because हाँ, तो इसीलिए हम पेरेंट्स को यही बोलते हैं कि यूज़ वेरी सिंपल बट रेपिटेटिव लैंग्वेज, यूज़ रेपिटेटिव रूटीन, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूज़ सोशल गेम्स, इनकॉर्पोरेट जॉइंट बुक रीडिंग, इस तरह की जो हम लोग चीज़ें पेरेंट्स को बता रहे, तो वो इसीलिए ही बता रहे होते हैं कि इवन अगर वो पूरा टाइम नहीं भी दे पा रहे हैं, लेकिन जो भी टाइम दे रहे हैं उसमें एटलीस्ट वो बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सपोर्ट हो सके। तो अगेन कम्युनिकेशन इज द की। ठीक है, कि आपने बच्चे के साथ जो है वो इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट एक रखना है। डोंट आइसोलेट द चाइल्ड टू स्क्रीन, या फिर मोस्टली ये होता है कि हम बच्चों को टॉयज के साथ छोड़ देते हैं, वी डोंट प्ले विद द किड। तो प्लेइंग विद द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
Okay. बिकॉज आप ही मॉडल करके उनको दिखा रहे हो, यू आर द मॉडल, यू आर गोइंग टू प्रोवाइड देम फीडबैक, यू आर गोइंग टू बेसिकली encourage the communication, because वो उसी से ही मोटिवेट होते हैं बच्चे. Okay. So Amna, my next question would be कि जो parents जिनके बच्चे they are just starting this journey of their child having a language delay, उनकी just ये एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, they are confused, they are puzzled, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, can you give me some steps कि first of all कि किस तरीके से, ये तो आपने मुझे आंसर कर दिया कि किस तरीके से पता चले कि लैंग्वेज डिले है कि नहीं है, डिसऑर्डर है, डिले है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल है तो व्हेन इज द करेक्ट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल टू कम टू अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट, और व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू दीज पेरेंट्स हु आर puzzled basically? Okay, so again, as early as possible, we know the first 3 years of a child's life, it is very important, right? Because वो उसमें बच्चे का brain develop हो रहा होता है, neuroplasticity का हमने एक concept पढ़ा है, जिसमें क्या है कि जो developing brain है, जो first 3 years of age होते हैं, बच्चा उसमें सबसे ज़्यादा learn कर रहा होता है, because brain उसमें सबसे ज़्यादा उसके connections बन रहे होते हैं, right? तो वो जो क्रिटिकल पीरियड हम इसको कहते हैं ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो पेरेंट्स को मोस्टली मैं कहती हूँ कि मिस आउट ना करें. सो फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसमें पेरेंट्स को ट्राई करना चाहिए कि इफ दे फील लाइक, एंड मोस्टली मिनहल ये आपने भी नोट किया होगा कि मदर्स को एक इंस्टिंक्ट होती है कि यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय चाइल्ड, या दिस इज नॉट लाइक, एटलीस्ट डिले तो समझ में आ जाता है मदर्स को. तो वो उनको उसी वक्त आना चाहिए. दे शुड, अब जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप की बात की, तो मोस्टली वी नो कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट के पास नहीं आते पेरेंट्स फर्स्ट. दे मोस्टली सीक एंड गो आउट टू सम डॉक्टर, ठीक है. तो पीडियाट्रिशियन हो गया, या इवन जो ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं, ठीक है. तो वो भी सही है, एज लॉन्ग एज दे आर टेलिंग देम टू गो एंड कंसल्ट अ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट. तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है वो आपके बच्चे को सबसे पहले तो वो आपकी ही रिपोर्ट लेगा. पेरेंटल रिपोर्ट पे हम लोग बहुत ज़्यादा अर्ली ईयर्स में डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमें वहीं से ही पता चलता है ज़्यादा कि क्या कंसर्न है. स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं बच्चे का, ठीक है. एंड वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन असेसमेंट एज वेल, ताकि वी गेट द फुल पिक्चर. तो हम इनफॉर्मल मेजर्स और फॉर्मल टेस्ट वगैरह करके हमें पता चलता है कि अच्छा डिले है या डिसऑर्डर है. जो भी अंडरलाइन कंसर्न्स हैं वो वी कैन पिक आउट, और हम उस पर पेरेंट्स को सही गाइड कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हैं. इफ़ देयर इज़ अ नीड फॉर वन ऑन वन थेरेपी सेशंस, हम बता देते हैं पेरेंट्स को कि थेरेपी की नीड है या नहीं है. अगर थेरेपी की नीड नहीं है, हम पेरेंट्स को एक होम प्लान देते हैं, या हम स्ट्रैटेजी सिखाते हैं पेरेंट्स को कि वो घर पे करें बच्चे के साथ. वो हम उनको करके दिखाते हैं अपने सेशंस में. एंड वी आल्सो रिक्वेस्ट देम कि वो वीडियोस बनाएं हमारे सेशन की, ताकि यू नो अगर घर में जा रहे हैं तो वो फॉलो कर सकें या कैरी ओवर कर सकें घर पे. इसी तरीके से जो है, अगर वन ऑन वन थेरेपी सेशंस की नीड है तो वो भी हम पेरेंट्स को बताते हैं. उसमें वी सी द चाइल्ड वीकली. फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है हर केस पे कि कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ थेरेपी इज रिक्वायर्ड, और उसमें वी फोकस मेजरली ऑन पेरेंटल ट्रेनिंग. बिकॉज देखो थेरेपी का कोई यूज़ नहीं है जब तक घर पे काम नहीं हो रहा बच्चे के साथ. और ये हम हर पेरेंट को समझाते हैं कि आप ऑब्जर्व करो, आप या तो अंदर आके बैठें या फिर आप सेशन ऑब्जर्व करें. एंड उसमें हमारा फोकस होता ही, क्योंकि देखो बच्चे की लाइफ में ना हमारा फोकस ज़्यादा बच्चे के ऊपर नहीं होता, हम ज़्यादा पेरेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं. बिकॉज वी नो कि बच्चा इवेंचुअली सीख जाएगा. इट्स जस्ट दैट कि जिसने सिखाना है वो घर पे उसके साथ है 24 आवर्स, हम नहीं है. तो इस पे हमारा इम्पोर्टेंट लिटरली, मतलब ये तो जितनी बार बोला जाए इस चीज पे, जितना एम्फोसिस दिया जाए उतना कम है. आई एम सो ग्लैड दैट यू आर सेइंग दीस वर्ड्स राइट नाउ, एंड आई जस्ट वांट के, आई होप कि जितने पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, क्योंकि यूजुअली ये नोशन है कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, सेशंस लेंगे तो उन सेशंस से प्रोग्रेस आ जाएगी. फॉर श्योर सेशन से प्रोग्रेस आती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती है. लेकिन व्हेन यू आर कमिंग टू अ स्पीच थेरेपिस्ट, वी आर हियर टू गाइड यू. ऑब्वियसली हम जो सेशन में कर रहे होते हैं वो यूजुअली इसीलिए कर रहे होते हैं कि आप देखें और आप घर पे जाके वो चीज करें.
तो that's so true, और very उसमें important. और मिनहल जी बच्चे की प्रोग्नोसिस जो है वो कितनी ज़्यादा अफेक्ट होती है बिकॉज और हमें एज थेरेपिस्ट पता चल जाता है कि किसके घर पे काम हो रहा है, किसके घर पे हो काम रहा है, नहीं नहीं हो रहा है। तो वो हमें पता ट्रू चल जाता है बिकॉज इवन हमारे सेशंस में भी प्रोग्रेस उतनी बेहतर नहीं आ रही होती जितनी इन्वेस्टेड पेरेंट्स के बच्चों की आ रही होती है, राइट? ट्रू तो ट्रू प्रोग्नोसिस बहुत इफेक्ट होती है पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से, घर पे कैरी ओवर होने से। एंड लैंग्वेज डिले, लाइक आई सेड बिफोर, कि इज जस्ट दैट के एक डिले है, ठीक है, एक लेट ऑनसेट है ऑफ लैंग्वेज, जो कि अगर सही टाइम पे हमने लाइक डायग्नोस कर लिया है या सही टाइम पे पेरेंट्स आ गए हैं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि बच्चा जो है वो नॉर्मल अपने एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स पे आ जाएगा, राइट? बट अगर आ इस जाएगा. हाँ, बट अगर हमने इसको नहीं लाइक देखा या हमने जो है इसको असेस नहीं किया सही टाइम पे या लाइक ट्रीट नहीं किया सही टाइम पे, तो वी नो कि कितने ज़्यादा और प्रॉब्लम्स इससे अराइज हो सकते हैं, डिफ़िकल्टीज कितनी ज़्यादा अराइज हो सकती हैं इससे। वन ऑफ द मेजर थिंग्स इज के Amna, can you hear me? यस आई कैन। सॉरी, आई थिंक आप मेरा इंटरनेट था, आपका लैग हो अब गया था. ठीक है, हाँ, अब ठीक है. ओके। सॉरी. हाँ, सो आई वाज सेइंग कि जो लैंग्वेज डिले है उसमें वी नो कि देयर इज अ चांस एंड द चाइल्ड इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग अदर डिफिकल्टीज या अदर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, जैसे कि बिहेवियरल कंसर्न्स अराइज हो जाते हैं बच्चे के। वी नो कि आगे जाके लर्निंग डिसेबिलिटी भी देयर इज अ चांस के हो सकती है बच्चों को विद लैंग्वेज डिले। तो इसीलिए जो है वी नीड टू कैच दैट इन द राइट टाइम फ्रेम, कि हम उसी वक्त ही जो है सही टाइम पे जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन पे हमारा बहुत फोकस होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप आमना. ओके, सो if you guys have any questions, please do ask, because we're almost done with our talk. Okay, so Amna, one more question that usually क्या होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी न्यूक्लियर फैमिली है और हमारे घर में एक ही बच्चा है, ठीक है, उसके कोई भाई बहन नहीं है, कोई कजिन्स नहीं है. So, do you think कि चाइल्ड टू चाइल्ड इंटरेक्शन से लैंग्वेज एक्विजिशन का कोई रोल होता है, या इट डज नॉट मैटर, एडल्ट चाइल्ड इंटरेक्शन से भी उसी तरीके से नॉर्मल माइलस्टोन्स डेवलप हो सकते हैं? डू यू थिंक कोई डिफरेंस है इसका? अच्छा, एक तो ये कि ऑब्वियसली दैट अगर चाइल्ड टू चाइल्ड इंटरेक्शन नहीं हो रही, वी कैन से कि इट्स अ सोल रीजन जिसकी वजह से लैंग्वेज डिले आ रहा है या बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रही, राइट? बट नाउ देयर इज कंसिडरेबल एविडेंस दैट शोज कि सोशल इंटरेक्शन का लैंग्वेज एक्विजिशन से कितना ज़्यादा लिंक्ड है, राइट? और Okay. लैंग्वेज जो है वो क्लोजली टाइड है टू सोशल डेवलपमेंट। और इसीलिए हम ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब एज पीरियड से इंटरेक्शन करते हैं तो वी नो कि एक वो एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स और एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज जो है वो यूज़ हो रही होती है। एंड यूजली किड्स जो हैं वो एक नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन का, जो कि जिसमें बच्चा कैन फ्रीली कम्युनिकेट, और वो एक बहुत ही एक बड़ा मोटिवेटर भी होता है फॉर किड्स टू इंटरेक्ट विद वन अनदर बिकॉज इट्स मोर फन, इट्स मोर एंगेजिंग, ऑब्वियसली बिकॉज एज अप्रोप्रिएट है, राइट? सो आई वुड से कि इट डज फॉस्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, बट आई वुडंट से कि इसकी वजह से लैंग्वेज एक्विजिशन नहीं हो रही क्योंकि बड़ा बच्चा कोई नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली कोई ना कोई बड़ा बेटा तो होता ही है हर फैमिली में या बेटी, राइट? तो उनकी तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, बट येस इट डज फॉस्टर एंड इट डज स्ट्रेंथन द लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसीलिए हम पेरेंट्स को, जैसे मैंने पहले बोला कि हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि इफ़ यू कैन नॉट प्रोवाइड
या if you cannot give time to your child इतना ज़्यादा, तो at least उनको जो है वो nursery या play group में enroll करवाएं, so that you know the child can at least communicate with age peers, because we know कि age peers से बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है. right, right. और So इसके you अलावा mean कि उस मिनल लाइक जी लैंग्वेज को हटा के भी एक सोशल और एक इमोशनल बॉन्डिंग बच्चों की होना, वो वी नो के ऑल ऑफ दैट वुड कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट. बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप. सो आपका यही कहने का मतलब है कि लैंग्वेज डिले इससे कॉज नहीं होता है, किसी भी बच्चे का चाइल्ड टू चाइल्ड इंटरेक्शन ना होने की वजह से लैंग्वेज डिले कॉज नहीं होता है, लेकिन इफ देयर इज अ चाइल्ड टू चाइल्ड इंटरेक्शन उससे लैंग्वेज एक्विजिशन में फॉर श्योर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा बच्चे. एग्जैक्टली. सो राइट. इवन दो कॉज नहीं होगा, बट मे बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, बट नो, नॉट अ सोल रीजन. Okay. So that was my last question, Amna. Yeah. Thank you so much for No joining problem. today. It was a very effective and nice talk. You talked about so many things जिनके बारे में बात करना बहुत important था. I hope लोगों को ये आपकी talk helpful होगी, क्योंकि I would like to say कि काफी लोग speech therapist या किसी भी therapist के पास जाने में डरते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि अब ये therapies बस अब रोज थेरेपी चलती रहेगी, ऊपर से इन्फ्लेशन को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं obviously. So, but you said कि no, it's not like that. If a child do not require intervention right now, you just give a home plan and parents can come weekly and visit, and you can see the progress as a therapist. So thank you so much. We do tailor our treatment plan as per the parents' needs या उनके जो भी concerns हैं. It's not important कि बच्चा जो है वो हर दिन थेरेपी लेने आए. और ये मोस्टली मैंने देखा है when I moved my city. तो मुझे पता चला कि like डेली बेसिस पे थेरेपीज हो रही हैं. There are many unfortunately ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि मिसगाइड कर रहे हैं पेरेंट्स को. So I would want to say कि पेरेंट्स जो जिनका थेरेपी से थोड़ा सा दिल हट गया है, it is because obviously they have faced negative experiences. तो इसीलिए I would want to say कि हम लोग हर पेरेंट के अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट प्लान और उनको उसी तरीके से ही गाइड करते हैं जितनी उनकी नीड है. Yes. Okay. Thank you so much, Amna. Thank you so much again for giving us your time. Thank you, and no problem, inshallah, Amna. I'll see you later. And Abhi, let's end this talk. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Take care. Hafiz.